Hi everyone, welcome to the basic and advanced SAS tutorial. So we continue with the previous session of SAS certification. So today topic is recognize and correct syntax error. So here is the topic error. We are in the error handling part. So today we are doing the recognize the correct syntax errors, identify the characteristics of SAS statements, define the SAS syntax rules indicating the typically types of syntax errors such as misspelled uh, misspelled keywords, unmatched quotation marks, missing semicolons, invalid options. Next is used to log to help to diagnose the syntax error in a given program. SAS statement होती कैसे कैसे हम उसको प्रॉपर लिखते हैं उसको वो सब होगा इसके अंदर देखेंगे. A SAS program written in the editor window and that contains a series of statement that tells us as what to do. Import a data set, give a frequency count of a variable. You can save your program so that it can be edited and reused after it's written. Okay. A SAS syntax is a set of rules that indicate how your program must be written in order of SAS. To understand it, there are some conventions of SAS syntax that new users should know before getting started. ओके. सो SAS स्टेटमेंट. SAS स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट होती है. SAS स्टेटमेंट्स फर्स्ट होती है कि आपका सिंटेक्स उसके अंदर. सो सेमीकोलंस, एवरी स्टेटमेंट मस्ट एंड विद द सेमीकोलंस, द जनरली कॉरेस्पॉन्डेंस टू एवरी लाइन एंडिंग विद सेमीकोलंस. ओके. सो कोई भी लाइन एंड होगी विद होगी क्लोज विद सेमीकोलंस. कोटेशन मार्क्स, द SAS recognizes a text as long as it indicate in quotation marks. So quotation mark will be there. So quotation mark, let's suppose मैं यहाँ पे it's here is a sentence. अब we are using the two quotation marks. So it's also correct, and a single quotation mark is correct used to so single quotes. Okay. Next is incorrect use of two apostrophe. So here अब यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे एक ये है, then एक single quote ये है, is this, it's a incorrect. So you have to write two single quotes here, then single quote one under in the inner one. So this syntax is correct because we use the double quotes outside and the single quote is the inside. So quotation mark semicolons is mandatory. Next is a SAS statement formatting. So SAS is a more relaxed than other coding languages when it comes to capitalization and indentation and line breaks. SAS note is a case sensitive. SAS is not case sensitive. Uppercase, lowercase letters are recognized as the same even for the variable names. Indentation and spacing before statement are ignored. Extra lines between a statements are ignored. Multiple statements on the same line are okay and provided they are separated by semicolons. A statement can span more than one line as long as it ends with semicolon. So एक examples हैं यहाँ पे. So statements always end with the semicolons. एंड नेक्स्ट इज मैंने डेटा एग्जाम्पल के नाम से लिया, सेट सैंपल करा, न्यू वेरिएबल और वेरिएबल था. फर्स्ट ब्लॉक कोड इज अ डेटा स्टेप always, and the first line and the last line are the left adjusted. So left में होगी statement contained with the indented. ये एक इंटेंडेड क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देन स्पेस देके अंदर की स्टेटमेंट लिखी और क्लोज करा, वो भी सेम लेवल पे था. Next is a proc print statement for printing a data, for output a data. So एक proc print करके यहाँ पे data लिया है और where statement से new word को लिया. The second block of code is proc stop. First and last line are left adjusted and statement contained with the indented. So कुछ examples देखते हैं अपने SAS Studio पे. So let's suppose मैं जो first एक program create करते हैं, यहाँ पे मैं program create करूँ यहाँ पे data new के नाम से. ठीक है. एक डेटा न्यू के नाम से क्रिएट करा. मैंने क्या करा, एक एरे बना रहा हूँ इसके अंदर. एरे क्या होता है, वो मल्टीपल्स लाइंस को स्टोर करता है, हमें मल्टीपल्स लाइन ऐसे कुछ लिखना नहीं पड़ता. लेट्स सपोज मैंने एरे बनाया
7 का, मैंने कहा कि 7 यहाँ पे डेटा लाइंस आ जाए, तो मैंने कहा D1 टू D7 एरे बना दिया। मैंने इनपुट लिया, इनपुट के अंदर मैंने कहा डेज, डेज के लिए अब मैंने यहाँ स्टार दे दिया। अब डेज से स्टार दिया, दैट मीन्स जो भी एरे के अंदर है वो एरे को कॉल करे। अब इसने हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिया, दैट मीन्स वो अब इस एरे स्टेटमेंट को देखेगा कि एरे स्टेटमेंट कहाँ पे है, और उसके अंदर जो वैल्यू होगी उसको वहां पे कॉल करेगा। इन्होंने डेटा लाइंस लिए यहाँ पे, डेटा लाइंस, ठीक है। अब मैंने कहा 1, सपोज मैं 1 स्पेस 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, और यहाँ पे से क्लोज कर लिया। सेमीकोलंस आएंगे आपके स्टेटमेंट के बाद में। फिर मैंने उसे प्रॉक प्रिंट से प्रिंट करवा दिया अपने डेटा को। डेटा का नाम क्या है, न्यू डेटा का नाम है मेरे न्यू, और उसे क्लोज कर दिया। सो एवरी स्टेटमेंट कंटेन्स ही सेमीकोलंस। लेट्स सपोज इंडेंटेशन करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे स्पेसेस दे रहा हूँ मैं सब में, तो स्पेसेस ऑल्सो वैलिड बट डजंट इफेक्ट योर स्टेटमेंट। कुछ मेरी स्टेटमेंट में चेंजेस नहीं होंगे, जैसे अगर मैंने उसको भी दिया अभी वो मेरी स्टेटमेंट रन होगी, कोई एरर नहीं आएगा, बिकॉज इट्स अ इंडेंटेशन फ्री चेस। ओके, सो अब क्या हुआ, मेरा डेटा कैसे आया यहाँ पे। अब इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस 1 आई है, D1 D2 D7 1 2 3 4 5 6 7 तक उसने ले लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एरे क्रिएट करा था। एरे के अंदर डेज को लिया 7 और D1 टू D7 के लिए, तो उसने एक पूरी सीरीज वहां पे मुझे प्रिंट करके दे दी। तो ऐसे हम कुछ एरे का यूज करके, सेमीकोलंस का यूज करके स्टेटमेंट को करेक्ट यूज कर सकते हैं इसके अंदर। डबल कोट्स में क्या आएगा आपका, सिर्फ मैंने यहाँ पे डबल कोट्स का यूज नहीं करा है, क्योंकि ये मेरा टेक्स्ट नहीं था। सिर्फ टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं डबल कोट्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, मैंने एक और डेटा बनाया डेटा टेस्ट के नाम से। अब यहाँ पे मैंने इनपुट लिया है कॉस्ट 1 टू कॉस्ट 10 तक। यहाँ पे भी हम एरे का यूज कर सकते थे और एरे से हम क्रिएट कर सकते थे सेम। मैंने यहाँ पे कॉस्ट 1 टू कॉस्ट 10 तक लिया और डेटा लाइंस को ले लिया यहाँ पे। सो अगर इसको मैं रन करूंगा डेटा को, तो क्या करेगा, जैसे सेम अबव मैंने एग्जांपल में करा था वैसे ही यहाँ पे उसने कॉस्ट 1 कॉस्ट 2 कॉस्ट 3 के अंदर वैल्यूज को असाइन कर दिया। ओके, नेक्स्ट में यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने सेट का यूज करा। अब एरे को मैंने यहाँ पे करा कॉस्ट 10 कॉस्ट 1 टू कॉस्ट 10। अब टोटल कॉस्ट को क्या करा, सम ऑफ कॉस्ट एरे। अब हम डेटा स्टेप के अंदर सम करने के लिए भी एरे का यूज कर सकते हैं। मैंने एक एरे लिया और उसको यहाँ पे सम के फंक्शन से उसको ऑफ कॉस्ट स्टार को उसने देखा स्टार क्या है, एरे, और एरे की सारी वैल्यूज को उसने ऐड कर दिया। मैंने पुट में ले लिया टोटल कॉस्ट। पुट किस लिए होता है, एक डिस्प्ले के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। वो पुट क्या करेगा, टोटल कॉस्ट को वहां पे डिस्प्ले कर देगा। पूरी रन करके देखते हैं अपने कोड को इसको, ठीक है। तो अब क्या करो, कॉस्ट 1 टू कॉस्ट 100 आ गई मेरे पास, और लास्ट में इसका कॉस्ट का उसने मुझे सम दे दिया। टोटल कॉस्ट का सम कितना है, 550 है। तो ऐसे यूज कर सकते हैं हम एरे वेरिएबल का, ठीक है, और अपने डेटा को कुछ इजी वे में कर सकते हैं। मल्टीपल्स लाइंस होती हैं तो इसके लिए हम एरे का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें इंडेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे नेक्स्ट लेट्स सपोज मेरे पास एग्जांपल है, मैंने इसके अंदर क्या लिया है, डेटा नेम गेम लिया है। लेंथ के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिया है 8 लिया है। एफ नेम में अपना नाम दिया सौरभ, लास्ट नेम है शर्मा, एंड फुल नेम में करा फुल नेम, इससे ये हमारा कनकैटिनेट का साइन है, ठीक है। देन लास्ट नेम कर दिया। अब जैसे इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, मैं रन करता हूँ इसको प्रॉक प्रिंट को। सो इसने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया और फुल नेम को सौरभ शर्मा एक साथ ज्वाइन कर दिया। तो हम ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ इस ज्वाइन सिंटेक्स के थ्रू। सो प्रॉपर मैंने यहाँ पे सिंगल कोट में दिया। डबल कोट्स में अगर देते हैं हम यहाँ पे, इट्स ऑल्सो वैलिड। अगर मैं डबल कोट्स में देता हूँ यहाँ पे, इट्स ऑल्सो वैलिड, और सिंगल कोट भी वैलिड है इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने डबल कोट्स में दिया, कोई सेम कोई चेंजेस नहीं आया डेटा के अंदर, डेटा बिल्कुल सेम है। सो हम डबल कोट सिंगल कोट दोनों का यूज कर सकते हैं, इंडेंटेशन नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। सो ऐसे हम अपने सहस के अंदर
जो प्रॉपर सिंटेक्स है उसका यूज कर सकते हैं। और लॉग्स, लास्ट में लॉग्स हैं। सो लॉग्स कैसे पढ़ते हैं? सो लेट सपोज ये मेरे लॉग्स आए, लॉग्स के अंदर अब इसने क्या दिया, जो लास्ट मैंने स्टेटमेंट को रन करा था तो उसने दिया दैट डेटा सेट वर्क डॉट नेम गेम। वर्क क्या है? मेरी टेम्पररी लाइब्रेरी। जब भी हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो वो टेम्पररी लाइब्रेरी में जाकर स्टोर होता है, वर्क में जाके। तो वर्क में जाके स्टोर हो गया। उसने बताया हैज अ वन ऑब्जर्वेशन एंड थ्री वेरिएबल्स, और नोट दिया उसने डेटा स्टेटमेंट इज यूज टोटल प्रोसेस टाइम। वो प्रोसेस टाइम बताता है रियल टाइम कितना यूज करो उसने, 0.01 सेकंड। सीपीयू ने टाइम करा 001 सेकंड। अब प्रॉक प्रिंट का आ गया। तो ऐसे प्रॉपर लॉग्स होते हैं। अगर एरर होता है आपकी स्टेटमेंट में तो वहां पे वो एरर दिखा देगा। लेट सपोज मैं एक एरर देता हूँ यहाँ पे। हमने जैसे यहाँ से सेमीकोलन को हटा दिया। अगर सेमीकोलन अगर यूज नहीं करते तो क्या होता है? जैसे हटाया मैंने यहाँ पे, अब इसने जो यहाँ पे ये रेड कलर का क्रॉस का साइन दे दिया, दैट्स मीन्स समथिंग एरर। सो हम एरर चेक करेंगे अपने डेटा के अंदर। तो उसने यहाँ पे एक एरर दिखा दिया, एरर इज 22 to 322 सिंटेक्स एरर एक्सेप्टिंग वन फॉलोइंग। ये इसमें से कुछ उसको रिक्वायरमेंट है, तो हमें पता है कि वहां पे हमने सेमीकोलन हटाया था, सेमीकोलन की मिसिंग है। तो हमें देखना होगा कि कौन सी स्टेटमेंट में एरर आ रहा है। अब इसमें होता है एफ नेम के बाद लास्ट नेम है और शर्मा। तो हमने देखा कि यहाँ पे सेमीकोलन इज मिसिंग, तो आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा के उसको यूज कर सकते हो। द करेक्टर वैल्यू हैज बीन कन्वर्टेड टू न्यूमेरिक वैल्यूज एट द प्लेस गिवन बाय लाइन कॉलन। अब यहाँ पे प्रॉपर उसने लॉग दिया उसका कि ये प्रॉब्लम है, आप इसको रेक्टिफाई करो, इसको करेक्ट करो। तो ऐसे हम डिबग कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ लॉग स्टेटमेंट्स। सो लॉग इज वेरी यूजफुल इन SAS फॉर डिबगिंग। अगर कोई भी एरर आता है तो हम यहाँ पे अपनी लॉग विंडो में जाके पढ़ सकते हैं उसको, और अपने प्रोग्राम को सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। आप कोई एरर नहीं आया, अब उसने सिर्फ ये दिखा दिया कि डेटा सेट है सक्सेसफुली एक्सिक्यूट कर गया और उसका टाइम वगैरह सब डिटेल्स आ गया। ओके गाइस, थैंक यू।